مسئلے کا حل نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے آف شوٹ ہوتا ہے. تو یہ ہم نے یہ چوائس ایک مشکل چوائس تھی. ٹھیک ہے ہمارے اپنے مسائل ہیں فی الحال, لیکن ان مسائل کا حل لینے کے لیے الیکشن کی طرف جانا مسٹ ہے. یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور پھر ہماری ایک اپنی وہاں سے ہم ریکوری کریں گے اور پھر الیکشن میں جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. جو ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, اکنامک اسٹیبلٹی, جو ہمیں ایک گروتھ کی طرف واپس گامزن ہونا, الیکشن ضروری ہے. تو اٹ از اے پازیٹیو ڈیسیژن اور اس کو بڑا سیریسلی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور ایک جو ہماری ایک اسٹیگنیشن میں ہم آ گئے نا, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ایک مسئلوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے. وہ ایک مسئلہ ریزالو ہوتا ہے تو دوسرا ایک ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جاتا ہے. وہ ایک جو ایٹماسفیئر ہے وہ بھی پیسیفائی ہوگا اور ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو سرکل, جو اس کا پہیہ ایک عجیب و غریب طریقے سے اسٹیگنیشن کا شکار ہو گیا ہے, اس کو ہم دوبارہ سے ٹیک اپ کر سکیں گے. تو اٹ از اے ویری پازیٹیو ڈیسیژن. لیٹس ہاؤ دے کین ایگزیکیوٹ اٹ لائک دیٹ, لائک دے پلان, اور یہ اس ڈائریکشن میں ہم جا سکیں. اچھا عاصمہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انٹرنیشنل پارٹنرز کا بھی کوئی پریشر آیا ہے پاکستان کے اوپر, گورنمنٹ آف پاکستان پہ, کہ وہ انتخابات بر وقت کرائیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ نگراں حکومت بھی کچھ ایمبیگوٹی کا شکار تھی کہ الیکشن شاید وقت پر نہ ہو اور الیکشن کمیشن ہی تاریخ دے گا, اور ساتھ ساتھ بجٹ کا کبھی بہانہ بنایا جاتا تھا, سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, امریکہ ہے, برطانیہ ہے اور آئی ایم ایف, اور گزشتہ روز ہی اے ڈی پی نے بھی اپنی رپورٹ جاری کی تھی. تو کیا یہ پریشر بھی کام کر گیا ہے؟ دیکھیے جی, پاکستان جو ہے نا, اس کی جو جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک پوزیشننگ ہے وہ ہم اسٹریٹجک ہے دنیا میں, اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. ابھی جو امریکہ بھی ایم کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ کمبائن کر کے, جو ایک اپنا وہ ایک کمیونیکیشن روٹ لینا چاہ رہا ہے, ٹرانسپورٹیشن روٹ لینا چاہ رہا ہے, یا جو ہم سی پیک چائنا جو کرنا چاہ رہا ہے, اس سب کی ویل بینگ ڈپینڈ کرتی ہے اس ریجن کے پیس کے ساتھ. یہ ریجن جتنا پیسفل ہوگا, یہ ریجن جتنا اسٹیبل ہوگا, یہ ریجن جتنا ایک انویسٹمنٹ اٹریکٹیو میگنیٹ ہوگا, اس میں ہی سب کا انٹرسٹ ہے. بالکل عاصمہ صاحب, جس طریقے سے آپ نے کہا, انٹرنیشنل پلیئرز کا رول ہے اس میں. جی, آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ اسٹیبلٹی آئے گی. اسٹیبلٹی الیکشن کا جو مسئلے کا حل ہے وہ الیکشن ہی ہے. لیکن بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ اس سے پہلے جب یہ بات اناؤنس کی گئی تھی تو اس پہ یہی باتیں تمام تر گردش کر رہی تھی کہ اتنا کم ٹائم فریم کے اندر حلقہ بندیوں کو مکمل کر الیکشن کی تاریخ دینا ممکن نہیں ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے کم ٹائم فریم کے اندر کیا چیلنجز زیادہ درپیش نہیں ہوں گے, اور ایسی صورتحال کے اندر لگتا ہے آپ کو کہ ایکسیڈ ہو جائے ڈیٹ؟ دیکھیے جی, الیکشن تو 90 ڈیز کے اندر ہی ہونے چاہیے. اس میں تو میں اس بات کی بہت ایڈوکیٹ ہوں کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن سپریم ہے اور کانسٹیٹیوشن کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہونی چاہیے. جو یہ حلقہ بندی اور ڈیلیمیٹیشن اور اس سے یہ بیسکلی جو کنسنسس ہے یہ ڈیجیٹل ویسٹ ہے, یہ اس طرح آن فٹ نہیں کیا گیا. تو اس کی پروسیسنگ اتنا بڑا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. اف دے پٹ دے ہیڈ ٹو اٹ, تو یہ چیز بہت آسانی سے ایک شارٹر ٹائم میں 150 ڈیز سے لیس میں پوری کی جا سکتی ہے. باقی وہ ڈی لمیٹیشن کے بعد سیٹوں کی ریفارمیشن ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس کے لیے آپ کو اسمبلی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ان کے پاس جو فی الحال ایٹ ہینڈ کام ہے نا, اس کو اگر یہ بہت ڈیڈیکیٹڈلی کریں تو یہ اگر یہ مسٹ اب اگر کرنا, جیسے آبویسلی کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو ایک لمیٹڈ شارٹر ٹائم میں اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے اور الیکشن کی طرف پروگریس کیا جا سکتا ہے. ویسے تو 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے, بٹ اف دے وانٹ ٹو ڈو اٹ آفٹر ڈی لمیٹیشنز اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ, تو اس کو بھی پیس اپ کر کے پریورٹائز کر کے جلد از جلد الیکشن کی طرف جانا ضروری ہے. جلد از جلد الیکشن کی جانب جانا بھی ضروری ہے. اویس, ایز یو سیڈ کہ کیا کوئی ہمارے پارٹنرز کی جانب سے بھی ایک ایڈوائس بھی ہے جس پر ہم عمل کریں اور ہم سوچیں کہ ہمیں جلد از جلد الیکشن کرانے؟ اور میرے خیال میں اویس یہ بات قرۃ آپ بھی ایگری کریں گی کہ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمیں جتنی جلدی جو بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس کا افیکٹ ہماری معیشت پر بھی آتا ہے, ایونچولی وی ہیو ٹو گو ٹورڈز الیکشن, اور وہی تمام تر مسائل کا ابھی فی الوقت حل نظر آ رہا ہے. اگلی جو گورنمنٹ ہوگی اس کے اوپر سرمایہ کار, ٹریڈرز اور دیگر جو بھی
कंपनीज हैं वो ट्रस्ट कर पाएंगी, और जिसका हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हमारी इकॉनमी जो है वो बिल्ड हो सके और हम उसे डेवलप कर सकें। लेकिन अवैस, जो आपने बात करी कि हमारे जो भी पार्टनर्स हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, उनकी क्या राय, एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि जो मुझे समझ आ रहा है, जैसे तारिक चौधरी साहब भी कह रहे थे कि 54 डेज तो चाहिए। हैविंग सेड दैट 23 जनवरी को 54 डेज कंप्लीट होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? उसके बाद तो जो संडे और जैसे वीकेंड आ रहा है, दैट इज आइदर 27 और 28, आपको क्या लगता है वैसे? सादिया, आपकी जो सवालात हैं इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस पर तज्जिया ले लेते हैं। शौकत पराचा साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इलेक्शन से मुताल्लिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की डेट दे दी है। फाइनली कोई डेट तो नहीं दी, लेकिन एक टाइम फ्रेम ज़रूर दे दिया है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड आप जानते हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि डिजिटल सेंसस के बाद हमने डिलिमिटेशन करनी है और दिस प्रोसेस कैन टेक टाइम, और अब ये फाइनली बताया जा रहा है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता है जिसमें इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन की ये जो ताज़ा तरीन अनाउंसमेंट है, अब ये उस सूरत में इम्प्लीमेंट हो सकती है कि अगर चीज़ें बिल्कुल ही स्मूथ चलें, हालात बिल्कुल सीधे चलते जाएं जैसे नॉर्मल होते हैं। व्हाट इफ के अगर दरमियान में कोई रुकावट आ जाए, और वो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि ये डिलिमिटेशन की लिस्टें लग जाएंगी, फाइनल लिस्टें 30 नवंबर को। अगर इनमें लिटिगेशन हो गई, मामला अदालतों में पहुंच गया, और वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, फवाद चौधरी साहब का वो ट्वीट उठा लें जो इसी मर्दमशुमारी के नतायज के बाद उन्होंने किया था कि जेलम की 2 सीटें थी कौमी असम्बली की, अब 1 की जा रही है, तो मैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब वो फवाद चौधरी अकेले नहीं है, चकवाल की भी सीट कम हो रही है, अटक की भी शायद कम हो जाए। तो अगर तो ये बहुत सारे लोग चले गए अदालतों में, हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं खुदा ना खास्ता मामला लटक ना जाए। तो इसलिए ये जो अभी स्पेसिफिक, जैसे सदर ममलिकत ने कहा था कि 6 नवंबर तक आप इलेक्शन करवा लें, तो इलेक्शन कमीशन ने भी उसी तरह ही कर दिया है कि जनवरी के लास्ट वीक में हम इलेक्शन करवाएंगे। कैलेंडर सामने पड़े हैं, आपको ये एक स्पेसिफिक डेट दे दें क्योंकि आपका पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। तीसरी अहम बात यह है कि ये नैब केसेस खुले हैं। अब यू नेवर नो जो प्रोसेस होता है कि ये सारे लोग पकड़े जाएं। पीटीआई चेयरमैन पहले ही अंदर हैं, उनके ऊपर कल 120 लग गया, यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा उनका नाम लिखा जा चुका। उसके बाद अब ये नैब वाले इन सबको उठा लें। आपके सामने 60-70 लोगों की फोटोज भी चल रही हैं और उनके नाम भी आ गए हैं, उनके केसेस खुल गए हैं। ये सारे राउंड अप हो जाते हैं, तो फिर इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा, किसके कहने पे लोग... पॉइंट यहीं से रेस होता है, जैसे कि आपने भी रेस किया कि नाप के केसेस अब दोबारा से खुल रहे हैं, तमाम तर तिजोरियां कह लें या दोबारा पिंडोरा बॉक्स कह लें जो कि दोबारा खुलने जा रहा है। और जैसे कि आज भी बात की जा रही थी कि नाप के अंदर ट्रक भर के केसेस इस वक्त खुलने जा रहे हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो इस वक्त जो है ना काफ़ी डिसबैलेंस दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं ऐसे माहौल के अंदर क्या कोई कैंपेन चल पाएगी, या इस तरह से इलेक्शन की जो डेट्स अनाउंस की जा रही हैं क्या इसमें कोई खलल होगा, या इसी तरीके से तमाम तर मामलात को लेकर चला जाएगा? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि इलेक्शन मीन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टीयर करने के लिए जमहूरियत में, सियासी निज़ाम में सियासी क़यादत चाहिए होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग अभी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इनमें से अक्सर बेल पे हैं और अक्सर ने जेलें भी देखी हैं इन्हीं केसेस में जो अब खुले हैं, उनके खिलाफ तो साल चलते रहे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो हम वेलकम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में सब कह रहे थे। जब निगरान हुकूमत बोलती थी वो भी कहती थी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। फिर पिछले दिनों मरकजी और 4 सूबाई लॉ मिनिस्टर का इजलास हुआ, वो भी आपके पास एलामिया होगा, उसमें भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। अब खुदा करके इलेक्शन कमीशन ने इस डेट का ऐलान कर दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा कि आप इलेक्शन करवा दें तो आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जो भी मुल्क के साथ डील करेगा, मुल्क हो, वो एंटिटी हो, वो प्राइवेट फर्म हो, वो कंपनी हो, सब यही सोचते हैं कि कल आने वाली हुकूमत इस एग्रीमेंट को या इस MOU को या इस
जो भी उनके दरमियान एग्रीमेंट हो उसको वो फॉलो भी करेंगे, ऑनर भी करेंगे या नहीं। इस लिहाज से तो ये बड़ा अच्छा है कि गैर यकीनी जो मुल्क को बिल्कुल ही मुल्क के जड़ों में बैठी हुई थी, कम अज कम एक डायरेक्शन आ गई कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। बाकी जो तो हर्डल्स हैं, मसलन वेदर इटसेल्फ इज अ हर्डल इन जनवरी। बहुत सारे मुल्क के बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी होती है, सीवियर बर्फबारी होती है जनवरी में, वो रास्ते रुके होते हैं। मैं कोई दूर दराज कोई हिमालय की चोटियों की बात नहीं कर रहा। यानी कि शौकत परांजा साहब, हमें हर मुमकिन वो नुक्ता जरूर उठाना चाहिए जिससे ये लगे कि शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आसमा बदूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, जिस तरह शौकत परांजा साहब समझ रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख का तो बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा, जिस तरह टाइम फ्रेम का तयन कर दिया गया है, और जो कि खुशाइंद बात है, लेकिन साथ साथ वो उन हर्डल्स की भी बात कर रहे हैं जो अब से पहले सामने आती रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान की जानिब से हल्का बंदियों से मुताल्लिक एतराज़ात हैं, या इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, या दीगर पॉलिटिकल मसाइल हैं। आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन अब चूंकि अनाउंस कर चुका है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता है, इसमें हम इंतखाबात करवाएंगे, तो जितनी हर्डल्स हैं क्या वो मायने खेज हो सकती हैं? जी जी, इसके बारे में तो बहुत क्रिटिकल होना पड़ेगा। ये सर ने बिल्कुल ही प्रॉपरली इस केस को डिटेल्स में डिस्कस किया, और ये बिल्कुल पोटेंट कंसर्न्स है। वाकई अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाती है, कोई भी बंदा इसके अपनी कंसर्न्स लेके सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, वो एक हर्डल हो सकती है। उस वक्त का मौसम, उस वक्त की सिचुएशन, उसके वक्त के मैनेजमेंट कंसर्न्स, उसमें आप किस तरीके से वोटर को मोबिलाइज करेंगे। आपकी एक पार्टी बिल्कुल मार्जिनलाइज हुई भी है, जिसकी बेसिकली ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस है, जो अब वोटर के साथ बहुत ज्यादा वोटर की बेसिकली फिलहाल उसमें एक सबसे ज्यादा फोकस्ड या सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन उस पार्टी की तरफ है, बट दैट इज हाईली मार्जिनलाइज। तो उसमें हम ये बहुत सी चीजें हैं, और ये बिल्कुल ही सर ने बिल्कुल ही अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट किया। मगर उसके बावजूद जो आपकी डेमोक्रेटिक फाइबर को फिलहाल अपने इंटैक्ट रखना है ना, अगर आपने इस चीज को इस तरह से लेके चलना है, हम बहुत ऊपर नीचे हमारी डेमोक्रेसी ने टाइम्स देखे हैं। अगर हम दोबारा किसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक क्राइसिस में नहीं जाना चाहते ना, तो बहुत प्रोएक्टिवली होके और बहुत रियलिस्टिक होके इन प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इलेक्शन इज नेसेसरी इस वक्त। अभी हमने जैसे पहले भी हम बात करने लगे थे कि हमारी अपने लोकल मसले तो हैं ही, पाकिस्तान के लोकल मसले तो हैं, लेकिन हमारे दोस्त और हमारी नेबरिंग कंट्रीज क्यों इतनी परेशान हो रही है? क्योंकि इस इलाके की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे स्टेबिलिटी हमारा अपना जाती मसला आइसोलेशन में नहीं है। पाकिस्तान अगर इस वक्त बहुत ही ज्यादा आपको लगता है कि फॉरेन फ्रंट पे आइसोलेटेड है, स्टिल हमारी जो एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है ना, वो हर इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। तो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के लिहाज से इट इज अबाउट द टाइम, आसमा, जो आप बात करिए कि हम इलेक्शन में चले जाएं। हैविंग सेड दैट, तमाम पार्टियां ही ये चाहती हैं कि हम इलेक्शन में चले जाएं। शौकत परांजा साहब, जो आपने पॉइंट रेज किया कि जिस दौर की सर्दी पाकिस्तान में होती है और अपर एरियाज बिलखसूस हम देखते रही होती है, और सिर्फ वोटर का आना नहीं और बहुत सारी, यानी जैसे बैलेट पेपर्स हैं, बैलेट बॉक्स हैं, वोटिंग का तमाम तर अमला है जो इस वक्त स्टेशन में, पोलिंग स्टेशन में चाहिए होता है, उन सबको मूव अराउंड करने में ऐसी बर्फबारी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि एशियन बैंक की आपने मिसाल दी कि जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उस डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे इलेक्शन से, बट एक और मुद्दा जो उन्होंने कल उठाया वो ये था कि महंगाई की शरह में कमी नहीं आएगी। अब जब आप महंगाई की बात करते हैं तो आप मईशत की भी बात करते हैं, उस पर आपका क्या पॉइंट है? पहले तो ये जो वेदर वाली मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी जी। अपर एरिया में बर्फबारी होगी, यकीनन होगी, लेकिन पूरा पंजाब इन तारीखों में सीवियर फॉग में होता है, बहुत थिक फॉग होता है। सिर्फ पंजाब नहीं, सखर तक जो है वो विजिबिलिटी 10 मीटर होती है या 5 मीटर होती है। यहाँ इस्लामाबाद में जब आप लाहौर के लिए जाएं, मोटरवे दिन को 12 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। और धुंध में, अब ये मैं वर्चुअल धुंध की बात कर रहा हूँ, मैं दस्का वाले बाई इलेक्शन की धुंध की बात नहीं कर रहा। तो जनवरी में इतनी शदीद धुंध होती है पूरे पंजाब में,
रहीम यार खान और आगे सखर से लेकर लाहौर या रावलपिंडी तक, इवन पेशावर चारसदा बंद होता है। तो पता नहीं ये डस्का का एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन, शायद उनके ज़हन में ये नुक्ता आया हो और मे भी उन्होंने मेट ऑफिस से कंफर्म किया हो कि इस साल जनवरी में शायद हुदूद नहीं होगी। अब दूसरी बात, जो आप महंगाई की बात कर रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। अगर महंगाई, पेट्रोल 400 रुपए लीटर हो गया, जो कि नजर आ रहा है, तो किस तरह हमारे सियासी रहनुमा जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, किस तरह से वो कैंपेन करेंगे, जिनके घरों में जनवरी में एक और भी मसला बनेगा, आटा नहीं मिलता जनवरी फरवरी में, शार्ट होता है आटा भी। शौकत पराचा साहब, जितनी गैस लोड शेडिंग हम पूरे मुल्क में देखते हैं सर्दियों में, वो भी एक मुद्दा होगा। जी, वो भी एक होगा। तो कौन जाकर फेस करेगा लोगों को। लेकिन बहरहाल जैसे आपकी दूसरी मेहमान बता रही हैं मिस आसमा मदूद, के इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन तो होंगे, सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज नहीं है, बल्कि जो भी स्टेटमेंट बाहर से आती है या हमारा कोई लीडर किसी भी बाहर के लीडर से मिलता है, चूंकि इलेक्शन डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट है और डेमोक्रेसी इस वक्त एक एक्सेप्टेड नॉर्म है अराउंड द वर्ल्ड, तो उस प्रोसेस में अगर हम अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, हम कॉमनवेल्थ में हैं, हम दूसरे उन तमाम डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी तो है। फिर बाद में चंद पार्टी सामने आएंगी और वो एतराज उठाएंगी कि जी वहां से हमारा बैलेट बॉक्स नहीं पहुंच पाया, और इस तरह के दीगर इश्यूज जो इससे पहले हम देखते रहे कि होते रहे हैं। इफ आई में आस्क, आप क्या डेट, अगर आपके पास ये ऑप्शन होता, फॉग भी ना हो, दीगर मसाइल भी ना हो, तो फिर क्या डेट होनी चाहिए थी इलेक्शन के? देखिए, रिगिंग का जो मामला है ना, वो तो जॉर्ज बुश 2002 में जब इलेक्शन जीते थे, फ्लोरिडा वाले वोट 30,000 जो ब्लैक कम्युनिटी के थे, उसके बाद वो झगड़ा चला। और अभी ट्रंप भी कह रहा है कि पिछले इलेक्शन में 2020 के इलेक्शन में उसको जबरदस्ती धांधली करके हराया गया। इंडिया में भी जब मोदी दोनों बार जीते हैं, मोदी जी का इलेक्शन हुआ, तो बाकी अपोजिशन कहती रही कि हमें हरवाया गया है। तो ये एक प्रोसेस तो है ना, उसका जो आउटकम है उस पे एतराजात हो सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे 14 मई को पंजाब का इलेक्शन होना था, वो प्रोसेस था, हमने तो वो प्रोसेस नहीं किया, हमने वो एक्सरसाइज अंडरटेक नहीं की। जैसे केपी में 90 डेज में इलेक्शन हो जाना चाहिए था, हमने वो एक्सरसाइज अंडरटेक नहीं की। जो एतराजात हैं वो आते रहते हैं, एतराजात परफेक्शन नहीं होती। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ठीक है एतराजात आते रहते हैं, लेकिन बात यहाँ पर जैसे आपने भी कही कि एक माहौल, एक कैंपेन जो कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को चलानी होती हैं, और इस तरह से जो अभी हम इकोनॉमिकल सिचुएशन देख रहे हैं, जो हमारी मुल्क की मईशत की सूरत हाल है, पेट्रोल के प्राइजेस रेस्ड हो रहे हैं, यहाँ पर गैस नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, टैरिफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं होगा, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा चैलेंज होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? क्योंकि 2024 तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2024 के अंदर इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी। देखें, ये चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, ये चैलेंज पॉलिटिकल लीडर्स के लिए है, और एक आंसर तो वो दे रहे हैं ना कि हमने अपनी सियासत कुर्बान की रियासत को बचाने के लिए। जब when it gets tough then tough gets going, तो जब सब के लिए ये एक मसला बनेगा, यानी फर्ज किया अगर ये 13 पार्टियां जो इस इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थी, ये तो पीछे नहीं हट सकती ना, और ये इम्प्लीकेट कर लेती हैं पीटीआई को भी कि IMF के साथ आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़े। एज अ नेशन सब के लिए ये हार्ड टाइम है। ये अगर मैं कहूँ या आप कहें कि सिर्फ पॉलिटिशियंस को ये डिफिकल्ट टाइम देखना पड़ेगा, डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी इन फेस ऑफ द जनरल पब्लिक, तो वो तो होगा। वो तो फिर हम कहें कि जनवरी में नहीं तो जून में भी होगा, वो जून के बाद अगर हम कहें कि अगले नवंबर, सितंबर, अक्टूबर में हो, वो तो होगा। क्योंकि चीजें तो एक 6 महीने या 4 महीने में अगर $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ भी जाए, इवन देन दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए ये जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। इलेक्शन होने हैं, चाहे लोग नाराज हों, लोग राजी हों, पॉलिटिशियंस को फेस कर सकें, पॉलिटिशियन ना कर सकें। मैं आपको जो डिफिकल्टीज की बात कर रहा था, एक तो आईनी बात मैंने की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, दूसरा आई एम सीरियसली कंसर्न्ड कि जनवरी में
क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूं, तो फॉग इतना शदीद होता है, मोटरवे 12 बजे दिन को खुल के शाम 4 बजे बंद हो जाती है, कैसे कैंपेन चलेगी? कैंपेन थोड़ी होती है कि एक हफ्ते की, यानी जैसे हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होगा, स्पेसिफिक डेट आएगी, 54 डेज कैंपेन के ही हैं। उन 54 डेज में आपने फॉग में आना जाना है। अल्लाह माफ करे, फॉग में बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं इन्हीं रोड पे, तो मुश्किल काम होगा। इसको इन मुश्किलात को सामने रखते हुए, क्योंकि अगर आप फरवरी में भी इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर आपका सेनेट का इलेक्शन जो 12 मार्च को कंप्लीट होना है वो भी इन डेंजर होगा। और सेनेट आपके कॉन्स्टिट्यूशन की कंटिन्यूटी के लिए, सेनेट की कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है। तो ये एक हार्ड पिल है, ये एक हार्ड पिल है। अब इसको कैसे हम डाइजेस्ट करते हैं? तमाम पॉलिटिकल पार्टी कोर्स ये एक चैलेंज है कि उन्होंने अपनी कैंपेनिंग किस तरह से कंटिन्यू करनी है, फिर वोटिंग का अमल है जो आप सारे बता रहे हैं, आपके भी इस हवाले से रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी तो कम चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के लिए होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कोई 4-5 लाख की अपनी फोर्स नहीं है। वो उन्होंने टीचर लेने हैं आरओज के तौर पर, डीआरओज के तौर पर, पता नहीं जजेस मिलते हैं उनको, या फिर ब्यूरोक्रेसी से काम चलाना पड़ेगा, या फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लेंगे। लेकिन आपको याद है डस्का में जो 22 लोग थे जो धुंध में फंस गए थे, वो सारे छोटे मुलाजमीन थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन जब रिक्वेजिशन करेगा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, सिक्योरिटी में सबसे बड़ी बात करूं, ट्रूप्स ने मूव करना है। अगर वाकई बहुत थिक फॉग है, ट्रूप्स कैसे मूव करेंगे? इलेक्शन का मतलब है, प्लीज सुनिए गौर से, इलेक्शन का मतलब है हर गली मोहल्ले में मूवमेंट होनी है। हर गली मोहल्ले से लोगों ने निकलना है, लोगों ने फिर वापस जाना है। सियासतदानों ने डोर टू डोर कैंपेन कहते हैं आप तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी, इस डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए आपको वेदर का भी ख्याल करना है, आपको सिक्योरिटी का भी ख्याल करना है। फिर सरकार ने जिन्होंने एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है, अगर गैस नहीं है, अगर बिजली नहीं है और उसके खिलाफ फिर मुजाहरे शुरू हो जाएंगे, तो ये सिर्फ मैं शौकत साहब, आप बहुत सारे मफरूजात के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और जो कि बिल्कुल वैलिड रीजंस हैं, वैलिड मफरूजा है कि चूंकि माजी भी रहा है पाकिस्तान का कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर इलेक्शन और दीगर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन क्या समझा जाए इसका मतलब कि फिर क्या हम इलेक्शन ही ना कराएं कि बिल्कुल हालात अच्छे हो जाएं फिर हम एक दिन आके इलेक्शन करा लें? अच्छा, एक तो आपने कहा मैं मफरूजों की बात कर रहा हूँ, मैं खुद हर साल फॉग में फंस जाता हूँ और मुझे बाद रास्ते में कहीं रात गुजारना पड़ती है। जी, मैं आपको ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। और दूसरी बात जो सरकार वाली है वो भी इम्पोर्टेंट है कि अल्टीमेटली तो सारा मुद्दा सरकार पे जाके गिरता है। तीसरी बात इससे भी अहम है, वो है इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किलात। इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात हमने बेशक जो भी डस्का में हुआ, लेकिन कम से कम एक इतनी संगीन इरेगुलरिटी तो हुई कि एक बार एक हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ा, 22-24 यूनियन काउंसिल जितनी भी थी। अब इमेजिन के जनरल इलेक्शन में आपकी कोई 1100 से ज्यादा नशिस्तें कुल मिलाकर, उन नशिस्तों पर इलेक्शन क्या हम बार बार कराएंगे अगर धुंध उस तरह से पड़ गई? लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको बार बार ये भी साथ कह रहा हूँ कि इलेक्शन करवाना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं शौकत बराजा साहब, आप धुंध का बार बार जिक्र कर रहे हैं और डस्का इलेक्शन का स्पेसिफिकली आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है वो फिर उसके ऊपर एतराज़ात आए और दोबारा इलेक्शन हुए, और आप ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं जनवरी में और उस वक्त भी ये सूरत हाल रहती है तो क्या फिर से सारे इलेक्शन करवाए जाएंगे? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि इलेक्शन की जो सूरत हाल बन रही है उसमें दीगर सियासी जमातों का भी तो इनपुट ज़रूरी है। इससे पहले आसमा बदूद साहिबा बात कर रही थी कि जिस तरह एक पार्टी को मार्जिनलाइज किया गया है या इवेंचुअली हो गई है किसी भी वजह से, तो दूसरी पार्टियों के लिए भी तो अब नैब केसेस और करप्शन केसेस खुल रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबके लिए बराबर नजर आ रही है। यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं है। यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड जब आप बात करते हैं तो आप मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान कंपैरेटिव वो एक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। मैं एक नेशनल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन हो, मेरे लिए 100 पार्टीज हिस्सा लें या एक पार्टी हिस्सा ले या 2 पार्टीज हिस्सा लें,
مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے غرض یہ ہے کہ جو ایک نیشنل ایکسرسائز ہو رہی ہے وہ کیا کریڈیبل ہے, کیا اس سے میرے لیے پرابلم تو نہیں ہوں گے ایز اے سٹیزن آف پاکستان. لیکن وہ شوکت پراچا اسی صورت میں پتہ چلے گا جب